Assalamu alaikum students, this is Maria Arslan with a new lecture for class 12 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव 3 books in class 12. One book consists of proses and there are 10 proses in the book. Then there are poems. 12 poems you have in all, and the third book which is a novel, The Prisoner of Zenda. We will begin our syllabus with the prose section, and the very first prose is 20 minutes with Mrs. O'Cantor. 20 minutes with Mrs. O'Cantor, written by Frank Arthur. फ्रैंक आर्थर ने ये मुख्तसर ड्रामा लिखा है. नसर निगारी के इस हिस्से में जो पहला सबक आप पढ़ेंगे वो है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटर. मिसेस ओकेंटर के साथ 20 मिनट, जिसके मुसन्निफ़ हैं Frank Arthur. Frank Arthur was a civil servant and a novelist and a writer. He has written many notable books. Times a Thief, She Wouldn't Dance, and 20 Minutes with Mrs. O'Cantor, which gave him a huge popularity. This is a melodrama. This short play is a melodrama, and this short play is full of suspense, emotions. We shiver while we are reading this short play. There is curiosity, suspense. What will happen next? What's going on? What will happen? So our mind starts to solving the riddles. We are thinking on different aspects. Either this would be or either this would be. So this short play is very interesting, which is written by Frank Arthur. So you have to read out this short play at home. While you will be reading, you will find some words which would be difficult. So first of all, I am explaining the meanings that would be a bit harder. Manipulation. The first word is manipulation, which means making, to make or to render. इस्तेमाल, the second word in this short play, from this short play, is tootsies. Tootsies means hands, and feet. हाथ पैर. दूसरा लफ्ज़ है टूटसीज, जिसका मतलब है हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर. थर्ड वर्ड इज chuckles. It comes in the chapter. Chuckles, which means to laugh without any reason.
बिला वजह हंसना, बिला वजह कहका लगाना, हंसने की, कहका लगाने की कोई वजह ना हो, बगैर किसी वजह के जो कहका लगाया जाता है, बगैर किसी बात के, दैट इज़ कॉल्ड chuckles. To laugh without any reason. The fourth word is grumbling. Grumbling, which means complaining. शिकायतन. The fifth word is prosperous, wealthy, उर्दू में इसे आप कहेंगे खुशहाल, दौलतमंद. The next word is flamboyant, which means extremely emotional. बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा जज्बाती शख्स को हम कहेंगे फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी. डिपार्चर मीन्स एग्जिट, रुखसती. चले जाना. प्लेट्स, PLAITS, प्लेट्स. पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको करने होंगे. सो प्लेट एक खाने वाली, PLATE, प्लेट. दिस इज PLAITS, प्लेट्स, विच मीन्स ब्रेड, ब्रेड्स. चुटिया, बालों की चुटिया. नेक्स्ट है लास्ट वर्ड मेडिटेटिवली. मेडिटेटिवली मीन्स थिंकिंग डीपली, थिंकिंग डीपली, गहरा सोचना, गहरी सोच. गहरी सोच को मेडिटेशन कहते हैं. मेडिटेटिवली, गहरी सोच, सोचते हुए. सो these were some of the words which I think were explainable. ये बताने के काबिल थे, इनके मायने बताने चाहिए थे स्टूडेंट्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वर्ड्स मीनिंग बोर्ड पे लिख दिए हैं. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, and after that you will read out this short play which is a bit lengthy as well. तो सबक आप घर पे पढ़िएगा. इसकी मुख्तसर सी समरी मैं आपको बता देती हूँ. There are a very short list of characters. किरदार बहुत मुख्तसर से हैं. As I have told you, it's a kind of short play, one act play. करेक्टर्स भी लिख देती हूँ मैं आपको. The first character in this one act play is he. Name is not known. उसके नाम का हमें नहीं पता. Anywhere in the chapter he is announced as he. उसको ही से ही इस पूरे वन एक्ट प्ले में
उसके तमाम किरदार की वजाहत की गई है. The other character in this one act play is she, a female character, and her name is Mrs. O'Connor. And the third character in this poem is Porter. तीसरा किरदार इस वन एक्ट प्ले में पोर्टर है, कुली हैं, जो कि प्ले के बीच में कहीं कहीं कुछ सेकंड के लिए आते हैं और कहानी के तसलसल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और हमारी सोच का ज़ाविया बदल जाता है, थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाता है प्ले. सो दीज वर द कैरेक्टर्स ऑफ द वन एक्ट प्ले, दिस शॉर्ट प्ले. ही name is not known. Second is she, Mrs. O'Connor, and the third is Porter. So the story revolves between he and she. As we have known the characters of this one act play. So the scene, where is the play being acted, कहाँ पर इस खेल को किया जा रहा है. So the scene is a railway station, a small railway junction, and the waiting room is the basic, you can say, act place. एक छोटे से स्टेशन के वेटिंग रूम में इस खेल के किरदार अपना किरदार निभा रहे हैं. स्टॉर्मी नाइट ऑफ द विंटर, मौसम सरमा की एक तूफ़ानी बारिश वाली रात है. सो वी सी दैट अ लेडी एंटर्स इन द वेटिंग रूम. हम खेल को पढ़ते हैं तो कहानी का आगाज़ इस तरह होता है कि खातून इंतज़ार गाह में आती हैं. उन्होंने अपना सामान कुली के हवाले किया हुआ है. बारिश हो रही है बहुत तेज़, जिसकी वजह से उनका हैट और उनका कोट थोड़ा गीला हो चुका है. वो तेज़ी से वेटिंग रूम में आती हैं और बेंच पे बैठ जाती हैं. कुली आके उनका सामान रख देता है डेस्क पे और गैस लाइट जलाता है और फिर खातून के लिए आग जलाता है ताकि खातून अपने हाथ पैर सेक सकें और सर्दी की शिद्दत कम हो सकें. इसी असना में एक और मुसाफिर अपने सामान के साथ वेटिंग रूम में दाखिल होते हैं. वो आके बेंच पर अपना सामान रख देते हैं और तमाम सामान जो खातून का पड़ा है उस पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं जिसका कोई मकसद नहीं. उसके बाद वो भी आग के पास एक कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं और आग से हरारत हासिल करने की कोशिश करते हैं. और कुली उन्हें बताता है कि अभी आप लोगों के पास कुछ वक्त है, 10-20 मिनट हैं आप लोगों के पास. ट्रेन की आमद में 20 मिनट का वक्त है, आपको 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा. ये कह के कुली वहाँ से रवाना हो जाता है. दोनों स्ट्रेंजर्स, ही एंड शी, बोथ दे आर sitting before the fire. Both are strangers, both are unknown to each other. So the man takes the initiate. आदमी खातून को मुखातिब करके कहते हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं. खातून थोड़ी नर्वस हैं लेकिन कहती हैं जी हाँ हम बात कर सकते हैं क्योंकि ट्रेन नहीं आ रही तो वक़्त गुजारने के लिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. आदमी पूछता है उससे, खातून से, कि मैं स्ट्रेन थ्रू जा रहा हूँ, क्या वहाँ पर कोई मिसेस ओकंटर रहती हैं? खातून
नर्वस हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। कहती हैं हाँ मैंने सुना है कोई मिसिस ओकंटफ वहाँ पर रहती हैं। आदमी कहता है वो दिखने में कैसी हैं? खातून कहती हैं मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लोगों से सुना है कि वो काफ़ी खूबसूरत है, सुनहरे बालों वाली है। आदमी कहता है मैं उसके किरदार के बारे में पूछ रहा हूँ। खातून कहती हैं आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आदमी कहता है उसके किरदार के बारे में भी जो कुछ जानना चाहिए वो मुझे इल्म है। जिससे खातून दोबारा से खौफज़दा होती हैं और साथ ही कारी भी, पढ़ने वाला भी परेशान कि खातून क्यों परेशान हो रही हैं। फिर खातून अपनी नर्वसनेस को मिटाने के लिए, कम करने के लिए कहती हैं कि ज़िंदगी में हम हज़ारों सैकड़ों लोगों से रोज़ाना हमारी ऐसी मुलाकातें होती हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमसे मिलते हैं और फिर हमसे बिछड़ जाते हैं और अगले दिन हमें पता चलता है कि फ़लाँ शख्स जो गली में हमारे पास से गुज़रा वो इंतकाल कर गया, जो कल बस में हमारी सीट से पीछे बैठा हुआ था उसे कोई हादसा पेश आ गया। तो इस तरह की मुख्तसर मुलाकातें हम दिन में रोज़ाना सैकड़ों लोगों से करते हैं। तो इसी तरह की ये एक मुलाकात है, आप भी कल कहीं और होंगे और मैं भी अपने रास्ते पर चली जाऊंगी। तो इस मौजू पर, इस नुक्ते पर आदमी कहता है कि ऐसी मुख्तसर मुलाकातें बाज़ दफ़ा ज़िंदगी बदल देती हैं और मेरे साथ ऐसे 2 वाक़यात हुए हैं, 2 मुख्तसर ऐसी मुलाकातें हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। खातून दोबारा से यकीन दहानी करती हैं क्या वाकई आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है? क्या मुख्तसर मुलाकातों ने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? आदमी कहता है जी हाँ, और फिर इसरार करके उसे बताता है कि मैं आपको वाक़यात बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। पहला वाक़या 1932 का, जब वो कोरिया में था, और खातून को बताता है एक ऐसी जगह का वाक़या है जहाँ पर आप कभी नहीं गई। ये वाक़या कोरिया का है। मैं ज़ख्मी था, मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी, मुझे स्ट्रेचर पर बांध कर रखा गया था, एम्बुलेंस का इंतज़ार किया जा रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ थी, मैं मर जाना चाहता था। लेकिन इसी असना में एक लड़की आई और मेरे ऊपर आके झुक गई। उसके कंधों पर उसकी चोटियाँ 2 लटक रही थीं, वो मुस्कुरा रही थी और फिर पुलिस वालों ने उसे भगा दिया वहाँ से और मुझे एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद मैं उस लड़की को कभी देख नहीं पाया, कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन उस मुख्तसर सी मुलाकात ने मुझे जीने का हौसला दिया। वही मैं जो चंद लम्हात पहले मर जाना चाहता था, अब मैं जीना चाहता था, मुझे जीने का मकसद मिल चुका था। खातून कहती है मैं समझ सकती हूँ आपको लड़की अच्छी लगी, आपको जीने की उम्मीद मिली। आदमी ने कहा नहीं, उस लड़की ने मुझे मेरी बेटी की याद दिलाई। अगर मेरी बेटी भी आज ज़िंदा होती तो वो 14 साल की होती और वो शायद उसी लड़की की तरह होती जो मेरे ऊपर आके झुकी थी। तो इस पे खातून परेशान हो जाती हैं, कहती हैं मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो लेकिन उस मासूम बच्चे की मुस्कुराहट ने आपको जीने का हौसला दिया और आपको मकसद दिया। कौन सा मकसद? आदमी बताता है कि मुझे इंतकाम का मकसद दिया, मुझे इंतकाम लेना है। खातून कहती हैं इंतकाम लेना हमारे खुदा के ज़िम्मे है, हमें माफ़ कर देना चाहिए। आदमी कहता है गलतियों की माफ़ी होती है, गुनाहों की नहीं। मैं उससे इंतकाम लूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूँगा। इस पे खातून दोबारा खौफज़दा हो जाती हैं, वो डर जाती हैं, अपनी जगह से उठती हैं, अपने सामान के पास जाती हैं, सामान से टेक लगा के खड़ी हो जाती हैं और फिर कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा वापस आ के बैठ जाती हैं अपनी जगह पर। सरसरी सी नज़र पूरे कमरे पे आदमी ने डाली, फिर मुस्कुराया और फिर बात आगे चली। तो आदमी उससे पूछता है तो ये जो मिसेस ओकंटफ हैं
ये क्या करती हैं? खातून कहती हैं कि मुझे इनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, आप खुद ही जाइएगा और आप नॉक कीजिएगा, वो बाहर आएंगी तो आपको वो जवाब देंगी। आदमी कहता है मैंने भी यही सोच रखा है, मैं बस दरवाज़ा नॉक करूँगा और मुझे उनके साथ सिर्फ 5 मिनट ही बिताने हैं और मैं इंतकाम लूँगा उनसे, मैं उसे मार डालूँगा। इस पे खातून का दिल दोबारा धड़कना छोड़ देता है, उनकी हालत, उनकी कैफियत बेहाल हो जाती है। क्या आप उसे मार डालेंगे? आदमी कहता है हाँ, मैं उसे मार डालूँगा, क्योंकि उसने मेरी बीवी और मेरी बेटी का कत्ल किया है। खातून कहती है नहीं, उसने कत्ल नहीं किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, अदालत में मुकदमा चला और अदालत ने उसे 18 माह की कैद के बाद बाइज़्ज़त बरी कर दिया और वो मुल्ज़िम नहीं थी। कोर्ट में उसने बताया कि उसकी हालत उस वक़्त गैर थी और उसे होश नहीं था और वो एक गलती नहीं, महज एक हादसा था। आदमी कहता है ये उसके वकील ने उसे बताया कि तुम कहना कि मैं अपने होशो हवास में नहीं थी, तो इसलिए मैंने गलती नहीं की, महज एक हादसा है जिसकी बिना पर उसे अदालत से बाइज़्ज़त बरी करवा लिया गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने वो हादसा, जिसे वो हादसा कहती है, एक जानबूझकर की गई गलती थी, क्योंकि वो शराब की दिलदादा खातून थीं, नशे में वो दुत थीं और अपने बिगड़े रईस दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने शर्त लगा ली थी कि 15 मिनट में स्टेन थ्रूफ से साहिल तक का फ़ासला वो 15 मिनट में तय करेंगी और ये फ़ासला इतना ज़्यादा है कि आधे घंटे से पहले तय नहीं हो सकता। मिसेस ओकंटप को तंग गलियों का, मोड़ का, सड़क पर ट्रैफिक की सूरत हाल का इल्म था, फिर भी उन्होंने ये शर्त लगा ली और सड़क पर जब उनके सामने एक खातून और एक बच्ची नज़र आईं तो दूसरी सिमत से उन्हीं के पीछे उसे एक ट्रक भी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि पेडेस्टेरियन, पैदल राहगुज़र जो जा रहे हैं, उनको कुचल डालूं या ट्रक में टकरा के अपनी जान गंवाऊं। तो लिहाजा उसे अपनी जान पसंद थी। उसने सोचा कि मेरी जान बच जानी चाहिए, मैं ट्रक से ना टकराऊं। तो उसने जानबूझकर मेरी बीवी और मेरी बेटी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें कुचल डाला और फिर उन्हें देखा भी नहीं। तो लिहाजा जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं उससे भी इतनी ही बेदर्दी से कत्ल करूँगा। ये अल्फाज सुनकर खातून के मुंह से चीख निकलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आदमी कहता है मैं कत्ल करूँगा और मैं अभी करूँगा, मिसेस ओकंटप आप ही हैं। खातून कहती हैं जी हाँ, मैं ही मिसेस ओकंटप हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं उस गुनाह करने के बाद, उस गलती के बाद बहुत पछता रही हूँ। मैं जिस जगह जाती हूँ वो भयानक मंज़र मेरा पीछा करता है। उस खातून और उस बच्ची की लाशें मेरी नज़रों के सामने हर वक्त रहती हैं। मेरा जीना दोबर हो चुका है। अगर तुम मुझ पर रहम करो, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो ये तुम्हारा रहम होगा, और अगर तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे तो ये मेरे लिए सज़ा होगी। तो लिहाजा तुम मेरी हालत पर रहम करो और मुझे मार डालो, ताकि वो भयानक मंज़र जो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहता है, मैं उससे छुटकारा हासिल कर लूँ। आदमी 1-2 सेकंड के लिए सोचता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वाकई अगर इसे ज़िंदा छोड़ दिया जाए तो ये इसकी कड़ी सज़ा होगी। ये अपने किए हुए गुनाह के पछतावे से बार बार मरे, यही इसकी बेहतरीन सज़ा होगी। आदमी ये सोचता है तो जो पिस्टल बार बार वो दिखा रहा होता है, वो अपना पिस्टल थाम के उसको कत्ल करने का इरादा तर्क करके मुसाफिरखाने के दरवाज़े से बाहर रवाना हो जाता है। जैसे ही आदमी बाहर रवाना होता है, उसके कत्ल का इरादा तर्क करता है। मिसेस ओकंटप, जो कि उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रही थी कि खुदा के लिए मुझे मार डालो,
मुझे मार डालोगे तो मुझे इस अजियत से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी के दरवाजे से बाहर निकलते ही उछल कर खड़ी हो जाती हैं और उसे बेवकूफ़ बनाकर अपनी कामयाबी पर जश्न मनाने लगती हैं। इसी असना में दरवाज़ा दोबारा खुलता है। आदमी उसे देखता है कि वो नाच रही है, उछल रही है। एक लम्हे की ताहीर किए बगैर वो उसे शूट करता है और वो अपनी जगह पर वहीं पर दम तोड़ देती है, हलाक हो जाती है, अपने किए की सज़ा पा लेती है। आदमी अपना बैग उठाता है, सामान उठाता है और वापस रवाना हो जाता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ 20 मिनट्स मिसेस ओकांटब इन उर्दू। उर्दू में मैंने आपको एक लेसन पूरा सुना दिया, बता दिया इसके मेन इवेंट्स, बट मेक श्योर कि आप इसकी रीडिंग खुद करें। enjoy the text, enjoy the situations that are explained, that are written in this one act play, and the intervention of the porter। बीच में एक दो दफ़ा कुली की मुदाखलत which disturb the mainstream situation, the tense situation that is created by Frank Arthur between he and she। Must read and must enjoy the text of this short play, and after reading the play some question arises which are very important from the examination point of view। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कुछ सवालात हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे, and you have to answer those questions। So those questions are there। Question number 1, what is the importance of the label? What is the importance of the label? On Mrs. Okantab's suitcase? मिसेस ओकंटब के सूटकेस पर लेबल लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Many times it has been asked in the exams, in different papers. This question has been appeared. What is the importance of the label on Mrs. Okantab's suitcase? So the answer is, the label on Mrs. Okantab's suitcase bears much importance. It reveals the identity of Mrs. Okantab. When she enters in the waiting room, the label is hanging on the suitcase. Anybody who will see the bag will definitely know her identity. So same is the case there. After she was sitting, after she had arrived in the waiting room, after her there approached he. While he was entering in the waiting room, he saw the label, and this was unnoticeable that he had seen the label. So when he started the conversation, he had known, he had identified the she character, that she was Mrs. Okantab. But he ignored the label after watching the label, and he started a play acting to Mrs. Okantab. He knew everything about her.
but he deliberately asked different questions to Mrs. O'Contor. He wanted to see what kind of lady she was. So she passed 20 minutes with her, conversating with her, and he realized that she is a very dramatic lady. She is modern, she is prosperous, she is very cruel, she is fond of drinking. So first he gave up the idea of the murder of Mrs. O'Contor, and he allowed her to live and carry on her punishment. But because he forgot to take his baggage, so that's why he came again. He opened the door of the waiting room, just wanted to pick his luggage, but when he saw that Mrs. O'Contor was dancing after making him fool, so he took up his revolver and suddenly, and without wasting any moment, he murdered her. So this was the base, this was the root, you can say. Label was the root of this chapter, Mrs. O'Contor. The label was carrying the name of Mrs. O'Contor, and the name of Mrs. O'Contor is just not a name, it's a character which had done a huge loss to the man in the past, and right now again she was making him fool and enjoying after making him fool. So the label bears much importance in this short play. So this question and this summary, some of the words meaning are enough for today. Further questions and exercises we will do in